Thank you. आपने पिछली बार एक just frame one photograph, select it yourself and send it. That is what I want. So these are the students who were celebrated from. कैसी हैं आप? Good to see you. Good to see you, sir. Ruby, sir. You always look the same. Please. How nice to be here again. Thank you very much. Seeing me. For us. Wonderful to be here. आपने आदेश दिया मैं हाजिर हूँ. कैसे चल रहा है? Like that, like that, like that. You've been selling yourself somewhere. You've been visiting some countries and spending time on the beach. Yes. I'm tanned. You're tanned. Tanned. वो मेरी पत्नी साथ में नहीं थी फिर गर्लफ्रेंड थी. No, I've been swimming. I swim every day I do about an hour from 12 to 1. Oh, in the afternoon? In the afternoon. Because then it's a little warmer. And otherwise... So I think the urination or whatever they do in the pool also has this tanning. So, you know, my mid is fair. It's like your color, but the rest is tan. Not mine, I'm partly on. No, you're fair. So the only one. Thank you. कैसी हैं आप? टाइगर डॉग? कितना वजन उठाता है? बताओ पावर्स की क्या बोल कितने किलो का करता है बेंच प्रेस? फिर से कैसी हो बेटी? अरे बाबा आप लोग सब बैठेंगे तो मजा आ गया हूं मैं. ताली तो बजा दो. तो जरा मैं ये अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लोड कर लूं फिर शुरू. As much time as you require. कल सुबह तक नहीं बनेगा. अभी आता. सब स्टूडेंट्स हैं इधर. फैकल्टी तो है मुझे मालूम है. बाकी स्टूडेंट्स हैं. क्या पढ़ रहे हैं? MBA. अरे वाह. वेरी गुड. उसके बाद फिर धंधा करेंगे. बिजनेस करेंगे. Very good to see you. Anyway, I'm very pleased. अभी आपसे मुलाकात होती. Just give me another 30 seconds. Introduction. Good morning to our Honorable Director General, AKGEC, Dr. R.K. Agrawal, Director AKGIM, Dr. T.R. Pandey, Director AKGEC, Dr. Hemant Ahuja, Honorable Guest, Ambassador Dr. Deepak Vora, Deans, HODs, Section in charges, faculty members, all my juniors and batchmates. Today I, Amulya Sharma, and I, Abhinandan Tyagi, welcome you all to the guest talk on the Jamwant affair. India becomes Bharat, being conducted at Ajay Kumar Garg Institute of Management. I request you all to please stand in their respective places for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchchal, Jaladhi, Taranga, Tab Shubh Naame jaage, Tab Shubh Ashish maange, Gahe Tab Jaya Gatha, Jan Gan Mangal Dayak, Jaya He Bharat Bhagya Vidhata, Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. Shaktihinaya Jagrukam, Shauram Shringaram, Hanugachati. Strength awakens within those who are aware, and courage becomes their adornment. This shlok echoes the importance of self-awareness
and the empowerment it brings, aligning with the theme of rediscovery. Today, I would like to introduce a fascinating concept that is shaping contemporary discussions around national identity, the Jamwant effect, especially in the context of India becoming Bharat. The Jamwant effect draws from the Ramayana, a revered Hindu epic, where Jamwant, a wise bear, helps Hanuman rediscover his immense inner strength, a purpose to support Lord Ram. In modern times, this analogy symbolizes India's potential rediscovery of its cultural roots, with Bharat representing a deep indigenous identity distinct from the colonial name, say India. This reawakening is seen by some as Bharat's journey to reclaim an ancient legacy. Now, I request Director AKGIM, Dr. T.R. Pandey, to present a sapling to our honorable guest, Dr. Deepak Vora. Thank you very much. Thank you. Ambassador Dr. Deepak Vora ji is a distinguished Indian diplomat with over 4 decades of experience in international relations, a notable alumni of St. Stephen College, Delhi University. He laid the groundwork for his diplomatic career with a doctorate in international relations, strengthening his academic foundation for a career in diplomacy. He began his distinguished diplomatic career with the Indian Foreign Services in 1973. His early postings took him to France and Tunisia, followed by key assignments in the United States and Sudan. He went on to serve as India's ambassador to Armenia, Poland and South Sudan, where he was instrumental in deepening India's bilateral relations and navigating complex geopolitical landscape. His diplomatic contribution also included significant humanitarian work, particularly in the conflict areas of South Sudan, where his expertise proved valuable. Currently, Dr. Vora continues to lend his strategic expertise as an advisor to the Government of India and international organizations, shaping India's foreign policy and fostering international cooperation. कोई मेरी बात नहीं सुनता, बोलते जाओ. May I now request the guest Ambassador Dr. Deepak Vora to share some thoughtful insights. Thank you. Please. Thank you. इसको यहाँ रख देता हूँ. ये जो सब है ना, ये मेरे PR वाले ने लिखा. Don't believe a word of it. 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ. ना विशेष हूँ, ना वो मेरी सलाह लेते हैं. एक गाड़ी देते हैं, वो पूं करती है, कोई सुनता नहीं है. Distinguished diplomat. और मेरे बायोडेटा में इन्होंने असली चीज़ तो बताई नहीं आपको, कि जब मैं आपकी उम्र का था, 22 साल का, तब मैंने 2 बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था. खूबसूरत तो मैं बहुत हूँ. और दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई. I was on TV for 1000 years. अब इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, प्लीज गिव मी योर अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स. और एक अपने मोबाइल पे वो चेहरा किताब नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फेसबुक, और वो इंस्टेंट कॉफी नहीं, थैंक यू, वो भी मत देखना. और वो टेलीफोन, बड़े होशियार हो गए सर, यहाँ पे सब मालूम, वो मत देखना. अगले 25, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी लड़ता रहता है ना हमारे साथ, आने से पहले उसको कहा था लड़ेगा तो बहुत ठोकूंगा तेरे को. तो को क्या नाम है उसका, पागलस्तान जैसे हम वो भूल जाते हैं. So sir, हमारी परंपरा नहीं है to go empty-handed. May I request you, sir? I promote Indian products. This is from Satyapal. जी साहब, आपको बोल रहा हूँ. आप इधर आएंगे and please accept this tricep. पांडे साहब, आपको भूला नहीं हो गया, आप कहाँ हैं? There is एक जोधपुर शहर है राजस्थान में, आपने नाम सुना है. वहाँ पे एक स्कूल है फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, मैं उसका चेयरमैन हूँ. तो वहाँ पे एक बार मैं गया हमारी एकेडमिक बोर्ड की मीटिंग में, तो देखा जो बाइसा कहते हैं राजस्थानी में, तो हमें मेरे लिए चाय बनाती थी एटसेट्रा. उसके चेहरे पे दाग थे. मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा हस्बैंड शराब के लिए पैसे मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, उसने मारा. मैंने कहा तूने वापस मारा? बोली नहीं, कि वो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या करूँगी. सो वी गेव देम 10 of them, we gave them
not sewing machines but knitting machines. So they started making scarves and gloves and blouses. Now they sell on Amazon. The group has included अब 50 हो गए, 40 ने बैंक से लोन लिए, बनाया, वापस कर दिया और एक महिला 30,000 रुपए औसत के तौर पर महीने के कमाती। और फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके पति आपको ठोकते हैं? कहती अब तो हम ठोकते हैं। This is what Narendra Modi talks about women's empowerment. Sir, like I wear polo necks, this is a polo neck made by our daughters from Jodhpur. And if it's too big for you because you made it from my side, वो आपका दर्जी काट पीट के। और दूसरे हमारे डायरेक्टर साहब कहाँ गए इंजीनियरिंग कॉलेज के? सर मैं आपसे एक जिक्र करना चाहता हूँ, हाल ही में you know that we have given classical language status to Pali. It's the 11th language, 1000 साल पुरानी जो नेशन, I'm a member to promote the use of Pali क्योंकि बौद्ध धर्म के बहुत से हमारे पुराने scriptures पाली में हैं. So sir, I induct you as an honorary member of the Pali revival. अब हम लोग शुरू करते हैं. आपने बता दिया जामवंत इफेक्ट के बारे में, हम क्यों उसके बारे में बात करते हैं. मैं आपको थोड़ी देर में वेरी क्विकली विल रन वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, फुल वॉल्यूम करिए. अब ये आपके स्टूडेंट्स के लिए, ये बताना मत सोचना, जो अमीर देश है, विकसित देश है, उनमें से फ्रांस है, यूरोप में इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, उनको डेवलप किसने किया था? चंद्रमा से लोग आए थे, मंगल ग्रह से लोग आए थे, समुद्र से निकल के आए थे, या उनके अपने लोग? अगर उनके अपने लोग थे जैसा आपने मुझे कहा है, तो मुझे जवाब मत देना. सोचिए कि हमें क्या बीमारी है, हमें क्या कमजोरी है. आप किसी से कम है? फिर क्या हो गया? हाँ, गवर्नमेंट की गलती है ना. हाँ, गवर्नमेंट तो चंद्रमा से आती है, वो सब दीपक कोडर की गलती है सर. तो हम लोगों को बात भेज दीजिए, दूसरी गवर्नमेंट लाइए. सोचिए क्यों नहीं हम कर पाए. भाई हम लोग, मैं बौद्ध धर्म से संबंध रखता हूँ, हम लोग सब अपनी सच्चाई, भगवान बुद्ध ने कहा था अपने आप से झूठ मत बोलो. मेरी दो सच्चाइयाँ हैं, एक कि मेरी उम्र 73. क्या कर रहे हो? अब सर जब मैं अपनी पत्नी को कोर्ट कर रहा, मेरी एक ही पत्नी है, 47 साल हो गए मुझे बुरी में. तो जब मैं उसको कोर्ट कर रहा था, हम लोग अलग शहरों में रहते थे, पता था इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है, दोनों के बीच में शादी हो रही थी, मोहब्बत हो गई थी. हमारी दुनिया का भी यही हाल है, हर जगह जल रही है. हमारी दुनिया का ये हाल है. सच्चाई ये है कि आज 40 जंग हो रहे हैं, 40 ऑन गोइंग वॉर्स. आप सब तो गाजा और वो क्या नाम है, वो जो यहाँ का प्रेसिडेंट बेगिंस्की, उसका नाम है, बेग करता रहता है, यूक्रेन, बेगिंस्की, यूक्रेन, वो हाँ जो भी उसका नाम है. तो वहाँ चले, वो अफ्रीका में भरे पड़े हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो रहा है, ईरान पाकिस्तान के बीच में एक्चुअल स्टेट ऑफ वॉर. वो ईरानी एक मिसाइल फेंकता है, ये फेंकते हैं, फिर मिलते हैं, और डार्लिंग डार्लिंग माय इस्लामिक ब्रदर, फिर मिसाइल फेंकते हैं, फिर बात फूट लो. Then we have all kinds of cyber warfare, drones, ये वो. अच्छा, उनके पास तो ड्रोन है, मेरे पास ड्रोनाचार्य है. और पता पश्चिमी देश जिन्होंने दुनिया को बर्बाद किया, जब ये सब जंग देखते हैं क्या कहते हैं? आप थोड़ा सा हल्के कर दीजिए, हाय हो रब्बा, हाय हो रब्बा. जब आप दवाई लेते हैं तो आप एक्सपायरी डेट देखते हैं. सही कह रहा हूँ डीजी साहब? अब हमारी जो दुनिया बनी थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, एक्सपायरी डेट की भी एक्सपायरी खत्म हो गई है, लेकिन कोई उसको बदलने नहीं देता. मुझे 51 साल हो गए डिप्लोमेसी में, अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि हमारी दुनिया जो है, वर्ल्ड ऑर्डर, वो क्या है. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. इसीलिए आपसे अनुरोध है, तो अगर आप समझ पाओ कि ये दुनिया क्या चीज है तो जरूर मुझे समझाना. अभी तक तो मुझे समझ नहीं आया क्या समस्या है हमारी दुनिया में. नंबर 1, चाइनीज वायरस. सब ये कोविड शोविड इज रबिश. इट्स द चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस. आप जो मर्जी कहिए उसको, पैंडेमिक, ये वो, इट्स द चाइनीज वायरस. और वो टिंगलिंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी है चाइना वाला, उसने ये पूरी दुनिया के ऊपर भेज दी थी. 1 out of 3 of us on this planet, 800 करोड़ है, was infected. 1 out of 3. और अगर भारत के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ना तोड़ते उसके सीक्वेंस को, तो आधी धरती खत्म हो जाती.
ये हमने बचाया है दुनिया को। ये गोरे नहीं मानते हैं इस बात को, सच्चाई यही है। सिर्फ वो अमेरिका का जो है मैकडोनल्ड ट्रम्प नहीं कर रहा है, वो मानता है इस बात। दूसरी चीज समस्या हमारे सामने है क्लाइमेट चेंज, जो आप दिल्ली में देख रहे हैं। ये नवंबर का महीना आ गया, वी आर इन द मिडल ऑफ नवंबर। जब मैं आपकी उम्र का था तो हम रामायण रामलीला देखने जाते थे अक्टूबर में, तो स्वेटर पहन के जाते थे। अब कहते हैं मुझे कि विंटर आएगा जून के महीने में। चलो मुबारक हो, जून तक वेट करते हैं गर्म कपड़े निकालने के लिए। क्लाइमेट चेंज। और एक चीज आपको बताता हूँ, लो लाइंग कंट्रीज, आपका एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो डूब जाएगा अगर इसी हिसाब से तापमान बढ़ता रहा। कहाँ जाएंगे वो लोग? उनका पड़ोसी कौन है? इंडिया। चाहिए आपको 20 करोड़ मुल्ला चाहिए आपको? फैसला कर लीजिए आप। तीसरा है आतंक, चौथा है ऑब्सेशन टू डोमिनेट, और पांचवा है नई टेक्नोलॉजीज का मिसयूज। अब मैं एजुकेशन की बात करना चाहता हूं आपसे थोड़ा सा। महाभारत में युधिष्ठिर के 4 भाई मूर्छित होकर गिर जाते हैं, यक्ष का जवाब नहीं देते। फिर धर्मपुत्र आते हैं, यक्ष कहता है इंसान की सबसे बहुमूल्य पोजेशन क्या है? धर्मपुत्र कहते हैं एजुकेशन। बेटा 10,000 साल पहले जब ये गोरे नंगे घूमते थे जंगलों में, करते थे, हम लोग एजुकेशन की बात करते थे। ये भारत है, ये इंडिया नहीं है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में, हमारी 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। कितने थे मैडम? 500। आज मेरे पास 60,000 है। और उनमें से शायद आपने एक का नाम सुना होगा, वो कोई गाजियाबाद नाम की जगह है, वहां पे एक गर्व ऐसा ही कुछ उसका नाम है, आपने नाम सुना होगा। वन ऑफ द बेस्ट, ताली बजाओ यार। मेरे पास 15 लाख स्कूल है, मैं हर रोज 2 नए कॉलेज खोलता हूँ। Will you believe it? 2 new colleges every day in the country. अमेरिका की आबादी कितनी है? 34 करोड़। भारत में 34 करोड़ विद्यार्थी हैं आप जैसे। और आप अपनी ताकत पहचानो। ये जो पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकल के, तो गोरे की वो पतलून जो है ना, वो हो जाएगी, क्योंकि आप में वो शक्ति है। अब आपके पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है। श्री अरबिंदो ने 115 साल पहले कहा था, भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है। जब हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है। उसने कहा भारत की रोशनी पूरी दुनिया के लिए है। अभी जर्मनी का चांसलर आया था, स्पेन का प्रधानमंत्री आया था, मैकडोनल्ड ट्रम्प आने वाला है मार्च में, फ्रांस का राष्ट्रपति आना चाहता है, वो नेदरलैंड से आना चाहता है। ये सब मोहब्बत क्यों हो गई है भारत के साथ? क्यों अब इतना पसंद? आप तो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, वो सब यहाँ क्यों आना चाहते हैं? मार्केट है आपका, 144 करोड़ का मार्केट है सबके मुंह। इकोनॉमी स्टूपिड। आने वाले साल में जो विकसित देश हैं वो 2% ग्रो करेंगे, भारत 8% ग्रो करेगा। गैप कम होता जा रहा है। ये नहीं कह रहा कि कल हम बहुत अमीर देश बन जाएंगे, बट द गैप इज स्लोली क्लोजिंग। सब कुछ है हमारे पास और ज्यादा भी है। सर, जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था तो मैं कुछ क्लासेस अटेंड, आई डिड सम लेक्चर्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ 80s की। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, हम उसको कहते थे विलियम लोमड़ी, विलियम फॉक्स। उसने पहली बार ये शब्द यूज किया था सुपर पावर। ये किताब लिखी थी 80 साल पहले, इट वाज कॉल्ड सुपर पावर। 1944 ही रोट दिस बुक 80 years ago। सुपर पावर, उसने कहा 3 सुपर पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और ब्रिटेन। अब सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया, ब्रिटेन जाने वाला है, बोर्डिंग पास उसके हाथ में है, बचता है यूनाइटेड स्टेट्स। और उसने ये भी लिखा कि अगर सुपर पावर बनना है, फर्स्ट टाइम दिस टर्म वाज यूज्ड, ये चीजें होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? साइज होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इकोनॉमी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें जो उसने लिखी, ये सब भारत के पास है। ये 80 साल पहले कह रहा था सुपर पावर बनने के लिए ये चीजें चाहिए। 1 करोड़ तो यहाँ समस्याएं हैं, we all know that।
उसके बावजूद आप देखिए आपका ग्रोथ इस साल 7% से ऊपर है। स्टॉक मार्केट पागल हो गया, 5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, ट्रिलियन में 12 शून्य हो गए। 1 ट्रिलियन 6 महीने के अंदर, मानव इतिहास में पहली बार। $1 ट्रिलियन इट एडेड इन 6 मंथ्स। अब 5 ट्रिलियन पहुंच गए हैं। स्टॉक मार्केट अगर अंबानी एक और शादी करेगा तो 6 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। मीडिया ने बुलाया भी नहीं मुझे शादी के लिए, दोस्त है मेरे। देखो जरा, अब मई में और अक्टूबर में हम अपना सोना वापस लेके आए, मालूम है आपको? 200 टन से ज्यादा। क्यों वापस लेके आए? थिंक अबाउट इट, वी आर ट्रेन। क्या होता है वो आप सब जानते हैं, क्यों होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। वो मेरा दोस्त जो है गवर्नर रिजर्व बैंक का कहता है हमारे पास पहले जगह नहीं थी रखने के लिए। मैं कहा टाइगर मेरे बातों में रख देता, उससे सबसे बड़ी बात है। हम वापस लाए हैं बेटा, ये हमने गिरवी रखा था अपना सोना 1991 में, जब हमारे पास $1 बिलियन बचे थे फॉरेन एक्सचेंज। आज तो 700 बिलियन, क्योंकि हमें पैसे चाहिए था, हमें लोन चाहिए था, कोई देने को तैयार नहीं था। और हम वापस क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये गोरे चोर हैं। रूस का सोना सारा हड़प कर दिया, वेनेजुएला का सोना हड़प कर दिया। अरे तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि दुनिया की तकदीर क्या हो? इसीलिए हम वापस, कल को मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। बहुत कमीने लोग हैं, इनकी ताकत चली गई है, फाइनेंशियल ताकत चली गई है, मिलिट्री ताकत चली गई, अक्कड़ नहीं गई अभी तक, वो भी हल्के हल्के जा रही है। सो वी आर ब्रिंगिंग अबाउट 60% 70% ऑफ आवर गोल्ड इज नाउ बैक इन इंडिया। इन पे हम सर जब मैं पढ़ता था अमेरिका में तो हमारे एक टीचर थे रॉबर्ट मर्टन, when I was attending his classes, he proposed the law of unintended consequences. आप कोई एक्शन लेते हो कि ये उसका परिणाम होगा, बिजनेस में बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है जो आप समझ नहीं पाते। कुछ और भी उसका परिणाम होता है। दिल्ली जब देश की राजधानी बनी थी, जहां मैं रहता हूं कनॉट प्लेस के बाद, वहां चूहे बहुत थे। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने कहा जो चूहे नहीं सांप, तो जो सांप मार के लाएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे। तो हर रोज हजारों सांप मरे हुए पहुंच जाते थे। किसने कहा यार तुम क्या कर रहे हो? अपने घरों में ये सांप पालने लगे और मार के तुमसे 2 रुपए ले लेते। ब्रिटिश सरकार बोली ओ तो फिर हम नहीं देंगे। फिर हम क्या करते, अगले दिन हमने सड़क पे भेज दिए, सारे सांप पड़ गए, घटे नहीं। ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है। यू टेक एन एक्शन, यू डोंट नो व्हाट द फाइनल रिजल्ट विल बी। अब क्योंकि आप बढ़ते जा रहे हैं, आप पढ़िए, रॉयटर्स को देखिए, बीबीसी में सुनिए, गार्डियन को देखिए, गाली देते हैं भारत को। ओ भारत में औरतों में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब लिखेंगे। ये लोग डरते हैं कि ये काला ब्राउन आदमी कहां से आ गया, हमें चुनौती दे। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट दे राइट। कौन होता है एक जर्नलिस्ट, उनका यहाँ आके 10 दिन लिखता है, बड़ा एक्सपर्ट बन जाता है भारत में? मैं तो 73 साल से भारत में रहता हूं, मैं तो ये सारी चीजें नहीं देखता। आप लोगों को सड़क पे भूखे मरते हुए देखते हैं? देखा? सच बताओ, देखा है आपने? ना मैंने देखा है किसी को भूखे मर। भीख मांगते आप बहुत कम देखेंगे, कोई ना कोई राजस्थान से बंजारा आ गया तो मांगता है। आपने देखा है? ये सच्चाई है भारत की, लेकिन उनको नजर नहीं आता है नजर, स्वीकार नहीं करते। तो हम लोग इनको क्या कहते हैं, जो ये नेगेटिव परसेप्शन कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? तो चलने दे, हमारी पार्टी को यूं ही चलने दे, हम बताएंगे इसको जब समय आएगा। जामवंत की आप बात कर रहे थे, जामवन या जामवंत, आपने बिल्कुल सही कहा था। जब एक राजा ने दूसरे राजा की पत्नी को अपहरण किया था, तो जो पीड़ित राजा था उसने अपने चीफ स्पाई मास्टर को बोला, अजीत डोभाल के ग्रैंडफादर को, कि ढूंढ के ला। अब उसको पता लग गया, उसके सोर्सेज ने बोला कि छोटे से आइलैंड पे सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जाए कैसे? ना हेलीकॉप्टर था, ना जहाज था, ना सबमरीन की, ना पानी का जहाज था। 100 कोस 300 किलोमीटर दूर देख पा रहा था, उस द्वीप को नहीं जा पा रहा। और फिर ये भालू, उसकी डेलीगेशन का एक सदस्य जो मेरी छाती पे है, आई हैव हिम एनग्रेव्ड ऑन माय चेस्ट, मेरा हीरो वो है जामवन। जामवन ने कहा उसको, हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपना जुनून याद कर, अपने आप पर भरोसा कर। अरे तूने तो सूरज को निगल लिया था जब तू छोटा था। हनुमान ने याद किया, एक छलांग लगा के पहुंच गया। यहां कहानी खत्म नहीं होती। सीता मां को उसने सीक्रेट मैसेज दिया, लिख के कुछ नहीं दिया, सीक्रेट में। और फिर उसको पता लगा कि ये राजा जो है छोड़ेगा नहीं इसको, जंग को। तो कहता है मुझे पता लगाना है कि इस नगरी की कमजोरी क्या है। अपने आप को गिरफ्तार करा के घुस जाता है उसकी राज नगरी में।
और सब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या। और फिर आखिर में कहता है एक तोहफा तो मैं दे के जाऊंगा, जला देता है, आग लगा देता है, फिर वहां से भाग जाता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने, ग्रुप कैप्टन साहब, डायरेक्टर जनरल साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ने पतन गुजरात के लेक्चर में कहा था, मैं उनके साथ था उरी के बाद, कि हमारा, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स, हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के। 15,000 साल पहले हनुमान ने घर में घुस के मारा था किसी को। और बेटा तब आप तो कहेंगे हम शांति प्रेमी हैं, गांधी जी के पुजारियां हैं। हम शांति की पूजा भी करते हैं, हम शस्त्र की पूजा भी करते हैं। अरे पंगा मुझसे मत लेना, मिटा दो बेटा, उस लोहे को पहचानो। और जामवंत ने हमें याद कराया है हमारा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सबसे ज्यादा अपने आप पे भरोसा। ये जामवंत इफेक्ट है। अब इंडिया भारत बन चुका है। वी हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस। मोदी को नहीं देगा, उसकी 56 इंच की छाती 76 इंच ऐसे चल रहा है, ऐसे करके। और क्या हमसे बोला है? आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करो। भारत की अब इज्जत बढ़ रही है बिकॉज दे नो आवर स्ट्रेंथ। भारत का नक्शा आपको किसने बोला? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये डच कार्टोग्राफर था मेरकाटो, सारे उसके प्रोजेक्शन है मेरकाटो के। बाइबल में नहीं है कि ये नॉर्थ साउथ, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, गीता में नहीं है, कुरान में नहीं है, तालमुड में नहीं है। लेकिन एक गोरा कह गया तो हम सब ने उसको एक्नॉलेज। तो अगर आप भारत को इस नजर से देखो बेटा, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो। और गोरों को क्या कहो, साल हो गया हम किसी से मदद नहीं लेते, 150 देशों की हम मदद करते हैं। योगा रेजोल्यूशन 177 आउट ऑफ 193 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया। बोले ये भारत का प्रस्ताव नहीं है, हमारा प्रस्ताव है, हमें वोटिंग की जरूरत नहीं। द लार्जेस्ट को स्पॉन्सरशिप इन ह्यूमन हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जब सुनामी हुई थी 2004 में, सबसे पहले कौन गया था मदद करने? श्रीलंका की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की, म्यांमार की, सबसे पहले कौन गया था मदद करने? और फिर अमेरिकी कहते हैं अभी टाइगर तेरे को किसने बुलाया है? लेकिन पहुंच गया, फिर ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, फिर जापान भी आ गया। और एक देश नहीं आया था, इसका नाम चीन है। डिंग डोंग का देश नहीं आया, क्योंकि वो डर गया था कि ये मेरी नेवल शक्ति देखेंगे तो मुझे जूते मारेंगे, इनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं। तभी वो नहीं आया, तो बड़ा वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश करता है। नेपाल में भूकंप आया था, आपको याद होगा ग्रुपी साहब, 2015 में। आज तक उसका असर है, द वर्स्ट इन देयर हिस्ट्री। बाकी सब नेता ने फोन किया था उस समय, जो भी प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल कोइराला, उसको फोन किया था, ओह बड़ा दुख हुआ जी, आपके लोग मर गए, वेरी सॉरी। भारत ने कुछ नहीं किया, 8 घंटे के अंदर हमारा पहला एयरफोर्स का जहाज पहुंचा राहत सामग्री के बारे में, मैं उसमें था। और नेपाल का प्रधानमंत्री कहता है, जाके भारत के प्रधानमंत्री को बोलो हमारी खुशकिस्मती है कि भारत हमारा पड़ोसी है। समझे आप लोग? मैदान में जब हम डट जाते हैं ना, फिर सर हम पीछे नहीं हटते। ये ताकत है आपके देश। चीन ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा हुआ था वायरस। हमने 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वैक्सीन। किसने अच्छा किया? उन्होंने। हमने वैक्सीन भेजी 100 देशों के साथ, हमने अपनी वैक्सीन बांटी। हमारे पास इनफ नहीं थी, क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं, किसी का दुख नहीं देख पाते। जब आपको तकलीफ होती है, सबसे पहले आपका पड़ोसी आता है। आपका भाई तो कहीं और रहता है, बहन तो कहीं और रहती है, तो समय लगता है। पड़ोसी सबसे पहले आएगा मदद करने। भारत भी गया था इनकी मदद करने, इनको ट्रेनिंग दी, इनको वैक्सीन दी, हमारे डॉक्टर्स वहां गए। ये ताकत है आपके देश की। सारी दुनिया आज भारत की इज्जत करती है कि जब मुसीबत होती है, वी कैन डिपेंड ऑन इंडिया। एक हमारे पास कंपनी नहीं थी सर, ये पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक कंपनी नहीं थी भारत में। फिर माँ भारती की पुकार गई, 3 महीने के अंदर 600 कंपनियां शुरू हो गई, जो बनाने लगी, जो डॉक्टर लोग पहनते हैं जब वो डेंजरस डिजीज से डील करते हैं। मैकडोनाल्ड ट्रम्प कहता, हमने उनको भी दवाई दी, मैकडोनाल्ड ट्रम्प कहता है वी विल नेवर फॉरगेट इंडिया का। उसने ट्वीट किया, हम कभी भारत की अच्छाई, मदद को नहीं भूलेंगे। बुर्ज खलीफा दुबई आपके तिरंगे में रंगा हुआ है। आई वाज देयर। अंग्रेजी में कहावत है, गेट टफ the tough get going। एक लाइन ऐड कर दीजिए, when the going gets toughest the Indians get going।
ये भी सच है कि 5,000 सर 5,000 हमारे बच्चे नर्सेज, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, फार्माकोलॉजिस्ट, दे डाइड सर, दे सैक्रिफाइस देम। हमारे पास वो पीपी नहीं था सर। 5,000 काम से नहीं पीछे आए, 5,000 इंक्लूडिंग माय पर्सनल डॉक्टर, ही डाइड सर सो आई कुड लिव। ये ऐसे लोग हैं भारत में, ताकत पहचानो बहुत सारे। थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। आपके जो नई मिसाइल हम बना रहे हैं, अभी परसों तो हमने नोटाम इशू किया है, नोटिस टू एयरमैन। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पे यू हैव एन आउटस्टैंडिंग एयरफोर्स ऑफिसर। ये पहली बार दुनिया में वी आर वर्किंग ऑन इट, आगे कुछ नहीं कहूंगा। रीयूजेबल मिसाइल, रीयूजेबल मिसाइल के यहाँ ठोकेगा, उधर ठोकेगा, इधर ठोक के फिर वापस आ जाएगा, फिर बोलेगा और लगाओ मेरे को 2-4 पॉट ठोक के आता हूँ। No country in the world थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम सर। और जो हमारी स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे 50% हमारी बेटियां चलाती हैं। मालूम है आपको 50% ऑफ स्टार्टअप्स आर हेडेड बाय द डॉटर्स ऑफ इंडिया। मजेदार चीज है। तो लोग जो हमको आजकल, तो हम यूनिकॉर्न की बात ही नहीं करते, हम तो डेकाकॉर्न की बात करते हैं। 10 बिलियन, यूनिकॉर्न तो 1 बिलियन होता है। और वो ब्लिंकिट क्या नाम है उसका, हाँ वो खाना अपना खिलाता है, हाँ वही, वो जो मेरे घर के पास रेडी लेके खड़ा रहता है, जब चीज से वो 5 मिनट देता है। $1 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन होगी, उसको खरीद लिया है। वो टोमेटो नहीं, हाँ वही। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि इतनी सारी जो आप लोग हमारी बेटियां चला रही हैं, लोग हमें कहते हैं जी जेंडर इक्वालिटी नहीं है भारत में। हम उनको क्या कहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए। पता है क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखो इधर है कि नहीं, हाँ है। हम उनसे कहते हैं जाके लुंगी डांस करो, तुम्हें पता नहीं है भारत की हकीकत क्या है। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस बेटा। आप लोग भूख नहीं जानते क्या होगा, मुझसे पूछो। 65 में जंग हुआ, बारिश नहीं हुई। 66 में अकाल था भारत में। मेरी माँ भारत फटी हुई थी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बारिश नहीं हुई। और आपकी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी अनाज की भीख मांगने। अमेरिका का राष्ट्रपति कमीना कहता है इंडिया लीडर कम्स बेगिंग। घमंड देखो। और वापस आके बोली अब हम भीख नहीं मांगेंगे अनाज के लिए, भोजन के लिए। टुडे वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड पूरी दुनिया में। हमें ये भी कहा गया था सर, डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर जनरल साहब, फैकल्टी मेंबर्स, हमसे ये भी कहा गया था कि सोमवार को मत खाओ, अन्न बचाओ। मैडम 52 दिन में भूखा सोया 66 में। बहुत चूहे कूदते थे पेट, 15 साल की उम्र, बहुत भूख लगती थी रात, भूखा सोया। नेशनल इमरजेंसी। माँ तो माँ होती है, कहती थी कुछ खा ले। मेरा बाप तानाशाह कहता इतना प्यार करता है देश से कि नहीं खाया मैंने। 1 साल भूखा सोया ऑन मंडेज बिकॉज इंडिया नीडेड टू सेव। अब तो वो दुख भरे दिन चले गए भाई। वी आर द $4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी। फॉरेन रिजर्व्स आपके दौड़ते जा रहे हैं, 700 बिलियन से ज्यादा हो गए हैं। और अब आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मीडियन एज। अरे मजेदार चीज है, मीडियन एज होती है सर, बस बेटा होती है नॉट एवरेज, मीडियन। आधी जनसंख्या उससे कम, आधी उससे ज्यादा। तो भारत की मीडियन एज है 29। 70 करोड़ भारतवासी आपकी तरह और मेरी तरह 29 से कम है, मेरी तरह नहीं। और 70 करोड़ वो जो सामने बैठे हैं उनकी तरह थोड़े से ज्यादा है, 29 से। जापान दुनिया का, we are the youngest country in the world, we will be for the next 50 years. जापान की मीडियन एज है 49। कितनी है? 49। इट्स द मोस्ट बुढ़ा कंट्री इन द वर्ल्ड। पता है क्यों मैडम? वो बच्चे पैदा कर दे भूल गए हैं। वो जापान के प्राइम मिनिस्टर होते थे शिंजो आबे, मेरे बहुत दोस्त थे, उनका कत्ल हो गया। He was a good friend of mine। एक दिन मजाक में मुझसे कहते हैं मिस्टर एम्बेसडर, ये क्या हो रहा है मेरे देश को? पिछले साल पूरे जापान में जापानीज मदर ने 7.5 लाख बच्चे पैदा किए पूरे देश में, और 10 लाख मर गए। यानी इट्स अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। 7.5 लाख बच्चे उन्होंने पैदा किए। तो मुझसे कहने लगे व्हाट डू आई डू?
मैंने कहा सर आप उस पूरे देश में 7.5 लाख बच्चे पैदा करते हैं, अरे हम तो गाजियाबाद में उससे ज्यादा करते हैं। तो बहुत हंसे, कहने लगे कि हमें थोड़ा सा ज्ञान दो, वो बात लेते हैं। It was meant to be a joke. I mean, we were laughing and enjoying ourselves. बेटा आप लोग हमारे देश की ताकत है। जिन देशों के पास यंग माइंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम कहते हैं, वो आप लोग हैं बेटा। You have this, we call it the talent demography. 50 साल तक we will be the youngest country in the world, और 55% भारतवासी आपका जन्म हुआ है 1981 और 2012 में आपको हम जेन जी, मिलेनियल्स एंड जेन जी कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जब हमारे बच्चों का जन्म होता है तो उसके हाथ में आईपैड होता है और कुछ नहीं होता, वो बचपन से ही देखने लगता है क्या होता है क्या नहीं होता। दिस इज इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गया नितिन गडकरी। अरे 34 किलोमीटर सड़क को एक दिन में बनाता है, दिमाग खराब है हमारा। वो भ्रष्टाचार कहाँ गया? वो टूटी फूटी चीजें क्यों नहीं बनाते? फिर फाइलों में लिखो, नहीं बना दिया हमने, क्या हो गया? 8 नए एयरपोर्ट एक साल में कोई बनाता है? पागल है हम लोग। 2 मेट्रो सिस्टम एक साल में कोई बनाता है? बेवकूफ है हम लोग। बनाते जा रहे हैं। देखते जाओ। बोले यहाँ आके मेरे जो दोस्त हैं एम्बेसडर कहते हैं व्हाई डू यू कॉल योरसेल्फ डेवलपिंग कंट्री? मतलब बिहार जाके देखो, फिर पता लगेगा। ऑल्दो बिहार इज गेटिंग सो डेवलप्ड। 6000 एक सेकंड। कैन यू बिलीव दिस? डीजी साहब मेरे साथ खड़े हुई इधर, आइए आप इधर देखिए। अब सच बताना, आप में से कितने हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? देखिए आप, मेरे को खरीद के दे देना। पिछले महीने अक्टूबर में हमने 1500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। अमेरिका 3 साल में करता है जो मैं 1 महीने में करता। समझ गए आप लोग मेरी डिजिटल ताकत कितनी है भारत की? 1/5 ऑफ माय इकोनॉमी इज डिजिटल इकोनॉमी। 100 देश से ज्यादा अब मेरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं। जब ग्लोबल साउथ की मीटिंग होती कहते हैं हमें सिखाओ, ये सब आप कैसे कर रहे हो? 210 करोड़ इंटरनेट मोबाइल यूजर्स। मैडम 3 भारतवासी प्रति सेकंड इंटरनेट से जुड़ जाते हैं 2 ग्रामीण क्षेत्र से। कौन कहता है कि ग्रामीण भारत और अर्बन भारत अलग है? अलग नहीं है, अब एक बन चुके हैं। 74 देश कहते हैं कि हमने भारत को चुना है एज आवर डेवलपमेंट पार्टनर। ये ऑफिशियल फिगर्स, क्योंकि हमें भारत पर भरोसा है। इंडिया इज आवर चॉइस। और हम क्या कहते हैं? यही है राइट चॉइस बेबी। आपने भारत को चुना है, हम आपको धोखा नहीं देंगे। चीनी आपको धोखा देगा, धोखा देगा, भारत नहीं देगा। We are going to conclude now। बेटा 1947 में केवल मेरा जिस्म आजाद हुआ था, मेरी मानसिकता पूरी गोरों की। जब मैंने विदेश सेवा का इम्तिहान लिखा था, मेरे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स थे ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन लिटरेचर। भारत का कुछ नहीं। हमने सोचा है कि हमें 1972 की बात करना। अब तो खैर बहुत चॉइसेस आ गई। तो 47 में केवल मेरा जिस्म आजाद हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। 25 लाख और 25,000 भारतवासियों को लेके ये आदमी सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत की आजादी के लिए लड़ता है। नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जब हमने उसकी मूर्ति को भारत की राजधानी में विराजमान किया, सर उस दिन मेरा आत्मसम्मान भी आजाद हो गया। जब चंद्रयान गया जहां कोई नहीं गया था पिछले साल, उस दिन मेरा आत्मविश्वास भी आजाद हो गया। मुझे मालूम नहीं आपका धर्म क्या है, मैं तो सनातनी हूँ, बौद्ध धर्म से संबंध है, लेकिन जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए मेरी आत्मा आजाद हो गई। और आप लोगों को मैं क्या कह सकता हूं? डरना है तो डर से डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। बेटा भरोसा करो अपने आप पर, हैव फेथ। निराशावाद में मत फंसो, वो आपकी ताकत बढ़ाता नहीं, आपकी ताकत चूस लेता है। आप अपने आप को बिल्कुल बेकार महसूस करने लगते हैं। किसी ने फकीर से पूछा था मैं दुनिया कैसे बदलूं?
बोला पहले अपने आप को बदलो। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सब कारगिल की लड़ाई में ये छोकरा 24 साल का बिहारी फौज में भर्ती होने गया। ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों टांगे कटी हैं घुटनों के नीचे। उससे कहा तू फौज में कैसे जाएगा? जवाब क्या देता है? मैं दुश्मन से लड़ने आया हूं, दुश्मन से भागने नहीं। देखो ये क्या इस देश का जुनून है। एक शेर है हर भारतीय दिल में, उस शेर को पहचानो, उस शेर को जगाओ। आप किसी से कम नहीं है। बचपन से मैंने सोचा है कि हम में खास चीज क्या है भारतवासी में। सब मैं इस माँ से मिला था सिक्किम में, दोनों उसके बेटे आतंक से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। एक तीसरा बेटा था। मैंने पूछा बहन क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? चेक में सब मिलेगा तेरे को, गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कहती आप तो स्पेशल एडवाइजर हैं। एक तीसरा मेरा बच्चा है, बेटा, वो उसको फौज में भर्ती करा दो ताकि वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए भारत के। कौन सी मां ऐसा करेगी? और जैसे मेरी आंखों में पानी आया, आज भी आता है जब मैं उस माँ का दृश्य याद कर रहा, तो काफी टाइम हो गया। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। मैंने कहा बहन अगर मेरा जन्म इस देश में फिर होता है, तेरी जैसी माँ की कोख से हो, वक्त आने पर मुझे और तब मैं समझा, sir, we are not Indians because we live in India. We are Indians because India lives in us. भारत हम में। हमारा समय आ गया। एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने किताब लिखी है, मेरी सहेली है, गर्लफ्रेंड नहीं है। किताब का नाम है Our Time Has Come, How India is Making Its Place in India. Our Time Has Come, भारत दुनिया में अपना स्थान कैसे बना रहा है। और जानते हो सबसे ज्यादा ये किताब कहाँ बिकती है? पाकिस्तान में। बेटा ये कारगिल में एक छोटा सा मेरा मकबरा है, पत्थर है, क्योंकि कारगिल में मेरा भी कोई चला गया, अमर हो गया, बहुत प्यार करता था। और उसके आखिरी शब्द जो मुझे 15 साल के बाद किसी ने बताया वो ये थे, he was an adopted son, फौज में था। His last words मुझे डैड कहता था, टेल डैड मैंने अपना फर्ज निभाया है। 8 गोली दी छाती में उसने। इस पत्थर पे यही लिखा है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, सब बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। बहुत देर तक दूसरों ने मेरा भविष्य लिखा। 100 साल पहले मैडम 1924 में 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ भारतवासियों पे राज किया। 1 लाख ने 30 करोड़ पर गलतियां हुई हमसे। अब नहीं, अब हम लिखेंगे इस देश का भविष्य, हम दुनिया का भविष्य लिखेंगे ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। कौन लिखेगा भारत का भविष्य? मैंने सुना नहीं। कौन लिखेगा? ये वादा करो, नहीं तो आके मारूंगा आप लोगों को। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा सूरज अस्त होने वाला है, आपका उदय हो रहा है। यू आर इन योर सनराइज ईयर्स, आई एम इन माई सनसेट ईयर्स। यू हैव टू राइट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रखो कि एक बेवकूफ बुजुर्ग भारत प्रेमी आया था, ये हमसे कह गया कि आपको लिखना है। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, नहीं पैदा हुआ तो मैं अपने कान को हाथ लगाता हूँ, भगवान से माफी मांगता हूँ कि तेरे को तकलीफ नहीं दूंगा इस देश का भविष्य लिखने के लिए। अब मैं लिखूंगा, अब हमारे लोग इस देश का भविष्य लिखेंगे। Destination 2047 to be a developed country. ये दिल मैडम इधर आइए, और थोड़ा सा अब आप वॉल्यूम बढ़ाइए इधर। जानते हो ये दिल क्यों मांगे मोर? क्योंकि अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
के लिए रखोगे? हर दिन वादा करो अपने आप से कि मुझे विकसित भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है। इंडिया चला गया अमृतसर के छोले खाने, ये भारत है, ये हमारा भारत है, ये विश्व बंधु है, विश्व मित्र है, विश्व गुरु है। सबको सिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। मैं तो अक्सर कहता हूँ रूबी साहब, हम 144 करोड़ लोग हैं, अगर टिंग टिंग पिंग पोंग डिंग डोंग क्या 40 करोड़ ये करेंगे वहां बाहर आ जाएगी। माफ करना, बट याद रखो बेटा बहुत ताकत है। ऑलराइट, पहले होता था सरकार की एक डिपार्टमेंट की अप्रोच, फिर होती थी पूरी सरकार की अप्रोच, अब लोग बात करते हैं पूरी जनता मिल के। अरे गाली देंगे लोग, ये ऑपोजिशन ये वो सब करने दो, ये उनका साहब हमसे क्या कहते हैं, उनका धर्म है गाली देना, आपका धर्म है आगे बढ़ना। कारवां जब निकलता है गांव में, आपने देखा होगा सर, वो जो गांव के वाले वो करते हैं, रुकता नहीं है कारवां, बिकॉज अ लायन डज नॉट टर्न अराउंड व्हेन अ लिटिल डॉग बार्क्स। हम सीधा आगे ये ताकत है। जितनी गाली देनी है, डेमोक्रेसी मर गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जितनी गाली देनी है तो तरक्की भी साथ साथ देखो, अपना चुनाव करो, कहाँ जीना है। You want to live in Pakistan or you want to live in भारत? ये मेरी माँ है बेटा, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। Thank you very much. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कौन बोला? टाइगर? शाबाश बेटा, वेल डन। ये होता है जरूर, रखो इसको। अच्छा, अगर आपने कोई सवाल पूछने हैं पूछिएगा, डायरेक्टर जनरल साहब जवाब देंगे। पैसे ले लेंगे मुझसे, हर सरकार कमी नहीं होती है, पैसे दे देते हैं। आइए, मजा आया? yes, फिर बुलाओगे? yes, नहीं भी बुलाओगे तो भी आऊंगा। डीजी साहब बुलाओगे? इस बार तो मैं MBA में आया हूँ, फिर अगली बार इंजीनियरिंग। बुलाओगे सर? पक्का वादा रहा? उधर देख के बोलो, इतने सारे मुझे वादा विटनेस चाहिए, नहीं तो कचहरी में मैं क्या जो करते, जो भी करते हैं कचहरी में वो कर दूँ। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। Thank you so much, sir, for sharing your valuable insights on the topic and telling. Kindly request the Director General, AKGEC, Dr. R.K. Agarwal, to present the memento to our esteemed guest, Ambassador Dr. Deepak Bohra. I hope you like this. Thank you. Thank you very much. Thank you. ये दे देंगे मुझे फिर? Sorry. लो बेटा, ध्यान से, हाँ वापस कर देना। So, are we through? Yes. Oh, अभी बैठना है? अभी चाय पियेंगे ना चल के। वैसे आपके डीजी साहब बहुत अच्छे हैं, चाय पिलाते हैं, पैसे भी नहीं लेते। Invite Dr. Sarju Pandita to deliver a formal vote of thanks. Ma'am, please. बड़ी अच्छी फोटो है मेरी। अभी मैं तिरुपति गया था, 3 हफ्ते हो गए, तो पंडित जी सुबह आके बोले आपको VIP दर्शन कराएंगे। मैं बड़ी अच्छी बात है कि लेकिन कीमत उठानी पड़ेगी। मैं कहा कितने पैसे? बोले पैसे नहीं, केस छोड़ के जाओ यहाँ। बात कमीना था, मेरे बाल उतार दिए उन लोगों ने, बेच दिए होंगे कभी। बट गोविंदा के भगवान बालाजी के दर्शन उसने मुझे करा। ये जो मोहब्बत है। So, respected Director General AKGEC, Dr. R.K. Agarwal, Director AKGIM, Dr. T.R. Pandey, Director AKGEC, Dr. Hemant Ahuja, our special guest of the day, Ambassador Dr. Deepak Bohra ji, all HODs, section in charges, faculty colleagues and my dear students. Jai Hind! Jai Hind! It is indeed a privilege to stand before you today to extend a heartfelt gratitude and vote of thanks after we have been, it has been an enriching, energizing and thought-provoking session, and on behalf of
whole AKGIM fraternity, I would like to express my profound gratitude to respected Ambassador Dr. Deepak Vohra for humbly accepting our invite, gracing us with his presence and delivering such a captivating lecture on the Jamvat effect, India becomes Bharat. Your insightful talk, sir, not only illuminated the historical cultural essence of India's transformation into Bharat, but also offered a fresh perspective on the deeper significance of this shift in the nomenclature. You have eloquently shared how this transition is not merely symbolic, but speaks volumes about identity, heritage, and the global standing. The way you connected the ancient wisdom and philosophical underpinnings of our civilization to the modern day narrative was truly remarkable. Your words have left us all with much to reflect upon as we strive to understand and contribute to the evolving story of our nation. We are highly indebted to you, sir, that you made it possible to address us despite your busy schedule. It's always pleasure and a treat for us to hear you speak in person, as we usually otherwise get to see you in Doordarshan or some other television channels interview. जो पैसे दे दे मैं वहीं जाता हूँ. Director General AKGEC Dr. R.K. Agarwal for inspiring us to organize events like this, which has truly enriched our learning experience. I would like to thank Director AKGEC Dr. Hemant Ahuja for his unwavering support, Dean Admin Air Commodore P. Singh sir for facilitating seamless operational arrangements. My gratitude is due to our IT support cell and photography section. This whole event would not have been possible without the motivation and support of our director, AKGIM Dr. T.R. Pandey, whose visionary leadership and unwavering dedication continues to inspire and elevate our academic journey. Thank you so much, sir. Faculty colleagues for their gracious presence. Needless to mention the support from the staff, students and the members of discipline committee for making this event worthwhile. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for giving us those patriotic goosebumps once again. Thank you so much. Thank you. Just share with you one recent experience. New York. Leaving at about 2:30 दोपहर में फ्लाइट लेनी थी. मेटल डिटेक्टर आर्च, सिक्योरिटी वाला देख रहा है कि क्योंकि मैं हाथ में ये पहनता हूँ छाती पे बहुत सारे रुद्राक्ष अदर थिंग्स, तो वो मेटल डिटेक्टर बोलता है पे पे पे, तो बोले सर मैं तो आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी. मैंने कहा लो पतलून नहीं उतारूंगा, बाकी जो मर्जी कर. तो यहाँ हाथ लगा ये क्या, मैं कि रुद्राक्ष है, ये क्या है, ये कॉर्नीलियन है, ये क्या है. बात करते गए, कह रहा वेयर आर यू फ्रॉम. मैंने कहा भारत का राजदूत हूँ. ये अमेरिकन सिक्योरिटी चेक होते तो बड़े बेवकूफ़ हैं. फिर मुझे कहता है सर आर यू अ हिंदू. मैंने कहा हिंदू क्या होता है. मैंने कहा यस आई एम अ हिंदू. यू आर हिंदू, यू आर द गुड गाइज, आई डोंट नीड टू सर्च यू, गो सर. मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये छवि बन रही है भारत. अच्छा काम करना जब कोई देख रहा होता है, अच्छा काम करो जब आप खुद देख रहे होते हो और कोई नहीं देख रहा होता. राइट? अपनी तारीफ आपके अंदर से आए, दूसरे की तारीफ का इंतजार मत करिएगा. बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड डू द राइट थिंग. तभी तो भारत आगे बढ़ेगा. 140 करोड़ की शक्ति समझते हैं आप लोग. अगर हम सब वही काम करने लगे, वही करने लगे जो हमें करना चाहिए. हमारा दिल, कई बार दिल से सोचो, मन से फील करो. नरेंद्र मोदी तो मन की बात करता है, मैं दिल की बात करता हूँ. थिंक विद योर हार्ट, फील विद योर माइंड एंड यू विल फाइंड द राइट डायरेक्शन. कोई आपको गाइड नहीं करेगा, गाइडेंस आपको अंदर से मिलेगी. आपके अंदर अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या. आप तो आज जो लड़कियां बैठी हैं, आप बेटियां हैं देश की, एक दिन पत्नी बनेंगी, शायद माँ बनेंगी. अपनी संतान को भी यही संदेश देना बेटा, बहुत मुश्किल था इस देश को यहाँ तक लाना, अब आगे ले जाना आपका फर्ज है, आपकी आने वाली संतान का है. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा था. Collectively has come to us. That's right.
look at sir, look at sir, look at sir, look at ma'am. Thank you. But I do believe rum was a drink to be served to horses at some time. Horses are given rum. कहते हैं ये गुरु ने सब बर्बाद किया. You are still eating and standing. Come on, you should have gone and rested. मजा आया? ओए की हो गया? I thought we got that NSS. बेटी है देश की. Join the army. हम क्या? अच्छी फोटो खींचना. खुश हो बच्चे, खुश हो. भाईगा? हाँ. मैं बुद्धा जरूर हूँ, कमजोर नहीं. हाथ मिला. ये फौजी का हाथ है. सर अच्छी फोटो लेना. Yes sir, yes sir. Thank you. The guy who was filming the event, he had to move his camera. बैठ के देखते ही है. चेहरा किताब. I will be on top. So will Narendra Modi. ऊपर से देखिए. नमस्कार जी. और कोई टाइम नहीं मिलता. So is it live or recorded? Live. कैसे? We have all our centers of excellence as well as that. फोटो सर जरा. This is one of the best common facility centers. Primarily dealing with goods manufacturing. And we have 3 centers. This is the advanced manufacturing. Advanced 5-axis. 3D. And this machine stayed in Pune for 6 months. खरीदा आपने मुझसे ना? Very impressive. Like 4 inches iron block, वो can cut it. उसको भी काट देगा. This is otherwise generally we use for precision cutting. हम लोग approximately 1 CR है. तो अगर लेजर कटिंग में जाएंगे तो वो 10 CR की मशीन है. ये लॉन्ग डिस्टेंस पे कटिंग कर देगी. जैसे अगर 3 का भेजा ऐसे तो अंदर कुछ है नहीं. खाली नॉट हैडल. So this is like wire medium. This is for precision cutting, for making bricks and fixtures.
for creating the parts. What do you do with all this? So these are used in various machine building or various. So you sell them to people? No, the industry will come and give us orders and we'll make for the industry. So this center is not used for training or for students. It's It is mainly to help the local Ghaziabad industry. And we have a consortium of 22 industries. But the areas must necessarily. if they have to go somewhere else, it will cost them much more. सर ऊपर सेविंग ऑन कौन छोटे से मिनिएचर्स बना रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी और इसके तो दीज आर ऑल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सर इसमें जो जितने आपके एरोस्पेस इंजीनियरिंग हैं उनके पार्ट्स हैं और स्पेस स्पेसशिप है और ऑटोमोटिव No casting. लास्ट विजिट में आपको दिखाई यहाँ पे फिर subsequent verification करते हैं. No, material testing before manufacture. Oh, before So the raw, whatever you want to produce, you want to ensure that it has the same composition. Plus, post making, you do impact testing and things like that. Hardness testing, impact testing. If you have this picture on, you can see the grain structure of the material. how we study it. What we study. The material and near thickness analysis can be performed on this microscope. Magnification. Up to 1000x magnification, we can magnify the sample, the microstructure to observe. This is I think 500x. Yes, this is 1000x and that is 330x. No, this image is 500. Yes, sir. और जो भी कोई पार्ट आप अगर यूज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड है. No question about it. सच्चाई ते सच्चाई है की फर्क पड़ता है. They all say that senior citizens should take certification. Yeah. तो झूठ बोलते हैं. They haven't met me. फोटो सर आपने कितनी फोटो खींची? 10-20 हज़ार तो हो गई होगी. वो मैं दफ्तर में लगा. The best one, you choose it. टाइगर लोग अभी तक आगे बैठ. मुझे बताया था आतंकी जब मारता है पीछे वाले को मारेगा. बड़ा सामान आगे तो सिक्योरिटी गार्ड है उसका. वो लूटते भी पीछे वालों को. थैंक यू. हमें तो मल्टीपल अच्छा लगा. आपने मेरा मर्तबा मेरा रुतबा बढ़ाया. अभी तो तेरे लिए मेरे थैंक यू. बाकी खाने पीने पूरा बैठते हुए धन्यवाद. थैंक यू.